everyone, welcome to the channel Code Mantra by Akhilen Dwivedi. So today we are going to deep diving into CORS or cross origin resource sharing, which unlocks the web security. So first of all, I would like to ask you, have you ever tried to fetch data from another website in your website in your JavaScript app only to get a weird error about CORS, or I will say CORS policy? So today we will be understanding all about CORS and how we can implement it, how we can resolve the error occurring due to it, and let's start. So this will be our agenda, that we will be talking about same origin policy, CORS, why we need CORS, and etc. So yeah, so here comes first thing, that is same origin policy. Okay, so it's basically a browser security mechanism in which browser allows that when the sender and receiver, when a sender creates a request to a receiver, or I will say server, and if they both have the same origin, then they can easily share their resources. Okay, so let me show you in the whiteboard. It's basically a blackboard. So here is a sender, this is your browser, and this is your server. Okay, so when sender requests, here sender make a request, and let's say it has a origin, I will say domain localhost 4000, and likewise server also has origin localhost 4000. So browser checks that both have the same origin. Yes, so when they have both have the same origin, then the request will be sent to the server, and sender sends back the response. Likewise SOP works, same origin policy. Now let's move forward. So now we will be talking about CORS, cross origin resource sharing. So first of all, I would like to tell you that it's basically a browser feature which has a set of HTTP request, and it allows server to declare which domain are allowed to access their resources. That means कि सर्वर को ये अलाउ करता है कि सर्वर बता सके कि जो जहाँ से आ रही है रिक्वेस्ट, क्या वो सेंडर, मतलब कि क्या वो डोमेन अलाउड है उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए कि नहीं. ये मेन काम रहता है कॉर्स का. ठीक है, तो ये बेसिकली इनेबल करता है सेफ क्रॉस ऑरिजिन एचटीटीपी रिक्वेस्ट को. ये ना ही प्रोटोकॉल है, ना ही एपीआई है, बस सेट ऑफ एचटीटीपी हेडर्स है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है. ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है. तो सेम, अगर हम सेंडर बनाए और यहाँ पर हमारा ब्राउज़र है और ये हमारा सर्वर है, लेट्स से इसका ऑरिजिन और डोमेन विथ पोर्ट है 3000 एंड इट हैज़ ऑरिजिन ऑफ लोकल होस्ट 4000. सो एज यू कैन सी दैट बोथ हैव द डिफरेंट ऑरिजिन. क्यों? क्योंकि इसका पोर्ट नंबर है 4000, इसका पोर्ट नंबर है 3000. तो जिसकी वजह से जब भी यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी, तो जब रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो ब्राउज़र क्या करेगा, सर्वर से पूछेगा कि सर्वर ये बताओ कि ये जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, क्या ये ओरिजिन तुम्हारे सर्वर में अलाउड है, क्योंकि ये तो क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग हो रही है. तो सर्वर क्या करता है ना, एक स्पेशल मैसेज भेजता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्स हेडर. तो इस कॉर्स हेडर में वो बताता है कि ये अलाउड, ये ऑरिजिन जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है वो अलाउड है कि नहीं है. अगर वो अलाउड होगा तो ये रिक्वेस्ट फर्दर फॉरवर्ड हो जाएगी, और इफ अगर नहीं अलाउड होगा तो क्या कहते हैं, एक एरर मिल जाएगा कॉर्स पॉलिसी की तरफ से. ओके, so let's move forward, and the third slide says that simple versus pre-flight request. So it's the best part, I would like to tell you about this. So yeah, so first of all we will talk about the simple request. Okay, simple request. So most if you have ever made any called APIs and made some applications on websites, so get and post requests are more famous requests that you will make. So this is the simple request. So what happens when the sender, means I will say sender is like your website
or your front end which make request from your backend, and backend is the server, because in backend only you write your server. So here is your server backend, and in between there is a browser. It can be Chrome, Firefox, in Internet Explorer, but nowadays Internet Explorer is not well known. So yes, so when a request, I will say get request, it's sent to the server. So browser check, okay, it's a get request, so it will send directly to the server. Okay, if you not think about that, I will say there can be any blockage or something. When the request will be sent, it asks for the course header, and I have said you before that what's the course. It's a special message that server sends to the browser, and for what the message is sent that to browser, so that browser can know, okay, the sender website is allowed to have resource sharing with the server. Okay, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम बात करें प्री फ्लाइट के बारे में, प्री फ्लाइट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना. प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, तो ये जैसे कि हो गया पुट रिक्वेस्ट करते हैं, डिलीट रिक्वेस्ट करते हैं, इन सब में हम प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं. इसमें क्या रहता है, जब आपकी वेबसाइट सेंडर, जब आपकी वेबसाइट जो कि लोकल होस्ट 3000 पे है, बीच में हमारा ब्राउज़र है, और यहाँ पर हमारा सर्वर है जो कि लोकल होस्ट 4000 पे, तो क्रॉस ऑरिजिन तो हो गया. अब इसने एक पुट रिक्वेस्ट किया, ठीक है. तो मेन क्या रहता है ना कि ये पुट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट या फिर कोई कस्टम हेडर, ये सब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है. ये सारी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट होती हैं. तो जब ये रिक्वेस्ट की जाती हैं तो ब्राउज़र पहले क्या करता है, एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, ये ब्राउज़र की मैकेनिज्म में ही होता है कि एक ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जिसका कोई रिस्पॉन्स नीडेड नहीं रहता है, ना ही उसका कहीं यूज़ होता है, प्रीफर को सेंड करता है ताकि सर्वर जो है वो कॉर्स हेडर ब्राउज़र को सेंड कर सके, ताकि ब्राउज़र को पता चले कि वो अलाउड है कि नहीं. अगर ये सर्वर ने, लोकल होस्ट 4000 ने अगर क्या कहते हैं सेंडर को अलाउड किया होगा लोकल होस्ट 3000 को कि वो रिसोर्स शेयरिंग कर सकता है, तो ये पुट रिक्वेस्ट आगे जाएगी और फिर उसका रिस्पॉन्स बैक मिलेगा, ठीक है. ऐसे वर्क करता है प्री फ्लाइट एंड क्या कहते हैं सिंपल रिक्वेस्ट. अब हम बात करते हैं कॉर्स की, रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लेट्स से कि तुम्हारे ये घर है, ठीक, और इस घर के अंदर तुम हो. अब लेट्स से तुम्हारे पिता आते हैं, ठीक है. व्हेन योर फादर कम्स टू योर हाउस, देन उनको ज़रूरत नहीं है कि वो तुमसे पूछे कि वो अंदर आए कि ना आए. क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी और तुम्हारे फादर का भी ऑरिजिन सेम है. क्या है वो? घर, ठीक है. लेट्स से लोकल होस्ट 3000, ठीक. अब हम क्या आगे बढ़ते हैं. अब लेट्स से हम बात करते हैं किसी तुम्हारे रिलेटिव की. इनको एक्सेस मतलब कि इनको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, फादर. अब कोई रिलेटिव आते हैं, दरवाजे पे आए, अब तुमसे पूछेगी क्या कहते हैं, अब तुम सोचोगे अपने दिमाग में क्या ये रिलेटिव से हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है, क्या ये हमारे घर में अलाउड है कि नहीं. तो तुम्हें उसके लिए अपने फादर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सबकॉन्शियसली तुम खुद ही सोच सकते हो कि उनको अंदर लेना है कि नहीं. तो ये होती है तुम्हारी सिंपल रिक्वेस्ट, ठीक है. गेट और पुट की, गेट पुट कि डायरेक्टली तुम क्या कहते हैं सर्वर से पूछ लेते हो, ठीक, विदाउट एनी प्री फ्लाइट. अब अगर हम बात करें किसी, मान लो कोई अनजान आदमी तुम्हारे घर पे आ रहा है, लेट से इलेक्ट्रीशियन, तुम्हारे पिता ने बुलाया था एक इलेक्ट्रीशियन को. अब ये तुम्हारे घर के अंदर आना चाहता है, तुम क्या करोगे, एक फ़ोन मिलाओगे. उस फ़ोन को हम यहाँ पर रिफ़र करेंगे प्री फ्लाइट से, ठीक है. एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट तुमने अपने फादर को की कि एक इलेक्ट्रीशियन आया, क्या उन्होंने अलाउ किया है उसको घर के अंदर ला के काम कराने के लिए. इफ़ यस, देन द ओरिजिनल रिक्वेस्ट विल बी मीन्स पुट और डिलीट विल बी सेंड टुवर्ड्स द सर्वर. So this is all about course, and let's have the implementation that how course work and how we can resolve its error. So let's get to the Visual Studio. I will open it up, and now let's make two files. I will name it as backend, and the other one, sorry, I don't want it inside, and the other one will be
front end. So first of all we will work at back end, and let's open its terminal. Yeah, so let's first of all call the package.json file. Yes, 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 everything, yes, yes. Now as you can see that we got package.json file. Okay, and this is our description about all about our project. Now what we have to do is we have to install npm install express, because we will create our server in express.js only, and yeah, it will take some time. So yes, express has been installed, and in this I will create a server.js file, and yeah, import express. अब हम express import करेंगे. ये मॉड्यूल बेस्ड पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, बट बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन जेएस ही यूज़ होता है, तो इसके लिए हमें एक पैकेज डॉट जेसन में एडिटिंग करनी पड़ेगी. मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे. एक्सप्रेस नाउ कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस. आई होप कि आपको सर्वर बनाना आता है छोटा मोटा, आपने कहीं ना कहीं बैकएंड और फ्रंट एंड पे काम किया होगा. सो अब ये लीजिए कि हम जब होम पे रहेंगे तो गेट रिक्वेस्ट करेंगे, और इसमें रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स का एक कॉल बैक फंक्शन बनाना होगा. यस, तो इसमें हम रिस्पॉन्स के तौर पे सेंड करेंगे हाय. ये हमने सेंड कर दिया. अब एक मैं एरे बनाऊंगा स्टूडेंट्स के नाम का, और हाँ, इस पे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे. इसमें पहला रहेगा नेम. नेम दे देते हैं अखिल, एंड नेक्स्ट थिंग विल बी क्लास. तो छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, ग्रेजुएशन. अब इसी की कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा हो जाए और टाइम भी ना वेस्ट हो. एंड नाम चेंज कर देंगे प्रदीप हमीद. इसने पोस्ट ग्रेजुएशन की. या सो दिस इज अ एन एरे. सो लेट्स से अगर कोई ऐप में काम करता है और वो गेट रिक्वेस्ट करेगा स्टूडेंट्स की, ठीक है, ये तो हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा कॉल बैक फंक्शन, और हम रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे. क्या सेंड करेंगे? स्टूडेंट्स ही सेंड कर देंगे, और क्या सेंड करेंगे. ठीक, ये हो गया. अब इसके बाद हमें ऐप को लिसन भी तो करना पड़ेगा. ऐप डॉट लिसन पोर्ट नंबर. तो पोर्ट नंबर मैं लेट से दे देता हूँ 3000. ओके, और यहाँ पर भी एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा. इसमें क्या रहेगा, कंसोल कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग. कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम कर देते हैं सर्वर क्रिएटेड, और यहाँ पर पोर्ट नंबर दे देते हैं 8 पोर्ट 3000. या सो हेयर वी गो. एंड यहाँ पर एक चीज़ हमें करना रहेगा कि स्क्रिप्ट है, टेस्ट है, अब इसको हमें स्टार्ट करना रहेगा कि कैसे हमें, हालांकि हम नोड सर्वर डॉट जेएस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे ऐसे, थोड़ा एडवांस देख लेते हैं. या इसको हम सेव कर देते हैं. अब यहाँ पर मैं जैसे ही लिखूँगा npm स्टार्ट, cd बैकएंड. ठीक है, हम बैकएंड पे आ गए हैं. अब देखो जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूँगा, ये क्या एरर आ गया. हाँ देखिए, यहाँ पर एरर आया है क्योंकि हम यहाँ पर मॉड्यूल बेसिस पे जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसकी वजह से हमें क्या करना रहेगा, पैकेज डॉट जेसन में जाओ, यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट में ऐड करो टाइप, और इसमें दे दो मॉड्यूल. सो कॉमन जेएस के टाइप में नहीं उसको रखेगा, इसमें अब इस तरह ये इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस करके. तो जब जैसे ही अब मैं npm स्टार्ट करूँगा, सॉरी, मेरा सर्वर बन चुका है, सर्वर क्रिएटेड एट पोर्ट नंबर 3. अब अगर मैं यहाँ पर जाके लोकल होस्ट
3000 करूँगा, ये देखो मेरा सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब यहीं पर देखते हैं स्टूडेंट्स, हाँ, तो अब अच्छे से हमारा सर्वर वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ। तो फ्रंट एंड के लिए एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम वीट का ऐप क्रिएट करेंगे, npm create वीट लेटेस्ट। यहाँ पर हम रिएक्ट चूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट चूज़ करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हमारे सारे पैकेजेस वगैरह और फाइल्स डाउनलोड हो जाएं। इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड्स एंड हेयर वी आर गुड टू गो। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखो ये तुम्हारा रिएक्ट ऐप मतलब फ्रंट एंड अच्छे से वर्क कर रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इस वजह से सोर्स में जाके ऐप में जाके इसको पूरा हटा दो। तो अब देखो यहाँ पर इसका ओरिजिन क्या है, लोकल होस्ट 5173। अब अगर सर्वर पे जाओगे तो सर्वर का होस्ट क्या है दिखाता हूँ मैं। सर्वर का, हाँ देखो ये है तुम्हारे सर्वर का होस्ट, लोकल होस्ट 3000। तो कैसे वर्क करेगा, नहीं वर्क कर सकता। इस वजह से अब देखो मैं दिखाता हूँ कि कॉर्स यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एरर कैसे देगा। अब जैसे मैं ऐप में आऊँ और इसके अंदर करते हैं कॉन्स्ट स्टूडेंट्स का डाटा, सेट स्टूडेंट्स और यूज स्टेट यूज़ करूँ अगर, और पहले एम्प्टी दे देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर स्टू टैग, यहाँ पर देखते हैं कोड मंत्रा बाय अखिल, एंड पहले देखेंगे कि स्टूडेंट्स की लेंथ कितनी है, ठीक है। पी टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे क्या, स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट की डाटा, तो सॉरी डिव लिया कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स डॉट मैप स्टार्ट कॉमा, कॉल बैक फंक्शन जाएगा स्टार्ट कॉमा इंडेक्स। हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, इसलिए हम नॉर्मल ब्रेसेस का ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा ना, पी टैग में, सॉरी डिव के अंदर क्या हुआ, डिव या यहाँ पर हम लगाएंगे ताकि इंडेक्स दे देंगे, और h4 टैग में दे देते हैं स्टू डॉट नेम, और इसके जस्ट बाद h5 टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पर दे देते हैं स्टूडेंट डॉट क्लास, या हियर वी गो। तो ये हमारा क्या कहते हैं पूरा बेसिक HTML हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा ना, इस सर्वर से API कॉल करनी पड़ेगी ताकि हम ये डाटा ला सकें। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि वो यूज़ करो, क्या कहते हैं एक्सियोस हमें यूज़ करना चाहिए, बट आप फेच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैं एक्सियोस से कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। npm इंस्टॉल एक्सियोस, यहाँ पर हमारा एक्सियोस आ रहा है, और अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके ये आ गया। अब हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करें ताकि जब भी हम माउंट करें अपने आप क्या कहते हैं फंक्शन कॉल हो जाए, कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सियोस डॉट गेट, और देंगे कहाँ से हमें डाटा चाहिए, हमें चाहिए इससे डाटा, कंट्रोल C, ठीक है, और ये मिल गया। अब इसके बाद डॉट देन इससे हमें मिलेगा रिस्पॉन्स में हम कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर रेस्प की रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स में हमने लगाया कॉल बैक फंक्शन, और फंक्शन लगा के क्या करेंगे कि
जो हमारा स्टूडेंट्स का डाटा है ना, उसमें हम इसको वैल्यू को डाल देंगे, रिस्पॉन्स के डाटा को। तो ऐसे हमारा काम चलेगा। और अगर हमें कोई भी एरर मिलती है, एरर कोई भी एनकाउंटर होती है, तो उसमें कॉल बैक फंक्शन लगा के कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को। ऐसे हम वर्क करेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया एक्सियोस के बारे में। इसको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं ये। सो यस, सो इस तरह हमारी एपीआई कॉल होगी हमारे बैकएंड के सर्वर से। अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। कंट्रोल सेव, और मैं करूँ npm run dev। हाँ, इसमें नहीं खोलना, क्रोम पे खोलते हैं अपने। तो लोकल होस्ट ये, तो अब देखो 0 दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और कंसोल पे दाऊं, फेल टू लोड, इसमें देखते हैं एरर क्या है। छोटा सा कोई मुझे लगता है एरर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पर जो हमें एरर मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है क्योंकि अगर मैं वी एस कोड पे आऊँ तो मैंने सर्वर को तो रन ही नहीं किया है, तो सर्वर काम ही नहीं कर रहा है मेरा। इस वजह से मैं इसको टर्मिनल पे लाता हूँ और यहाँ पर हम अपना सर्वर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर देंगे अपना सर्वर। सो यस, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। हाँ, वर्क कर रहा है सर्वर। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो, यहाँ पर हमें एरर क्या मिला है, एक्सेस टू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एट दिस वन फॉर ऑरिजिन दिस वन, मतलब कि डिफरेंट ऑरिजिन है, क्रॉस ऑरिजिन है, हैज़ बीन, इस वजह से हमें ब्लॉक कर दिया गया है क्रॉस पॉलिसी के मुकाबले, क्योंकि कोई भी एक्सेस कंट्रोल अलाउ नहीं। यही हमारा मैसेज होता है कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन, मतलब कि ये ऑरिजिन बताता है कि येस और नो, तो यही हमारा एरर है। तो इस एरर को कैसे हम रिसॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज रहता है npm कॉर्स करके। ये, इससे आप पढ़ सकते हैं npm कॉर्स के बारे में। और इसको मेनली नोट करने की चीज़ है कि इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको हम हमेशा सर्वर साइड पे ही रन करते हैं, मतलब कि बैकएंड पे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको चल के हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने बैकएंड पे। तो बैकएंड पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा बैकएंड पे इंस्टॉल हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हमें अगर सिंपल यूज़ केस है तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह इसको कॉल करेंगे और फिर हम लगा देंगे, जैसे हम मैंने किया था ना, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस फंक्शन, उसी तरह हम इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल सी इसको कर लेता हूँ। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन ग्रेड पे अगर आप ये करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सारे ही जितने भी रिक्वेस्ट उस सर्वर पे आएंगे आप सबको अलाउ कर रहे हैं, जिससे कि आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रोडक्शन ग्रेड पे हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको फॉर इन केस दिखाई दे रहा हूँ। इम्पोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और अब इसको ले आते हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, वैसे ये यूज़ जो होता है ना, ये मिडिल वेयर की तरह, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम मिडिल वेयर अप्लाई करते हैं। तो हम अपने सर्वर पे ये मिडिल वेयर कॉर्स करके अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमने सर्वर को सेव किया। अब मैं करूँगा npm स्टार्ट, अपना सर्वर रीस्टार्ट करते हैं। सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ सर्वर काम कर रहा है, यस। और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं हमारे पास तीन जो भी हमने एरे बनाया था स्टूडेंट्स का, उसमें तीन एलिमेंट्स थे, अखिल ग्रेजुएटेड, प्रदीप ग्रेजुएटेड एंड हमीद पोस्ट ग्रेजुएटेड। सो इस तरह हम अपने कोर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एरर रिजॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसका एक और तरीका होता है प्रॉक्सी, जो कि हम फ्रंट एंड पे करते हैं। उसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। अब आगे चलते हैं अपने स्लाइड पे। अब आगे चलते हैं हम अपने स्लाइड पे। देखिए ये आ गया सिक्योरिटी कंसिडरेशंस। ठीक है, तो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस क्या है कि कॉर्स इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर। पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्स है वो एक सिक्योरिटी फीचर नहीं है एक सर्वर के लिए, ये बस यूज़र को प्रोटेक्ट करता है। हमें कभी प्रोडक्शन गेट पे एस्टिक, मतलब कि जो अभी मैंने आपको दिखाया था ऐप डॉट यूज़ में मिडिल वेयर की तरह कॉर्स फंक्शन अप्लाई किया था उसमें, वो हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि वो सारे ही रिक्वेस्ट, मतलब कहीं से भी वो रिक्वेस्ट आ रही है उस सर्वर पे, उस वेबसाइट पे, उसको वो अलाउ करता है। ठीक, ऑलवेज वैलिडेट एंड वाइड लिस्ट ट्रस्टेड ऑडियंस। इसका मतलब ये वाइड लिस्ट क्या है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को, मतलब कि जैसे लोकल होस्ट 4000 है अपने सर्वर पे, उनको वाइड लिस्ट करते हैं ताकि जो भी ऑडियंस वाइड लिस्टेड होंगे हमारे सर्वर पे, उनकी रिक्वेस्ट को हम उनको हम एक्सेस दे सकते हैं अपने रिसोर्सेज का। ठीक है, और हमें HTTPS का यूज़ करना चाहिए मिडिल मैन अटैक से बचने के लिए, ये तो बेसिक है आपके लिए। नाउ
मेनली कॉर्स को लेके क्या लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है उसके बारे में हम बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि कॉर्स एक सर्वर सिक्योरिटी लेयर है, बट ऐसा नहीं है। कॉर्स बस एक ब्राउज़र फीचर है जो कि एक सेट ऑफ एच हेडर्स होता है और कुछ नहीं, ठीक है। और कॉर्स एरर मीन्स सर्वर इज ब्रोकन, मतलब कि कॉर्स अगर एरर आ गया तो लोगों को लगता है सर्वर डाउन हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अलाउ नहीं कर रहा होगा आपके ऑरिजिन को ताकि वो सर्वर से रिसोर्स एक्सेस कर सके। और काफ़ी लोग को लगता है कि कॉर्स को हम फ्रंट एंड के मदद से बाईपास कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि ब्राउज़र जो है ना इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है कॉर्स को, ताकि यूज़र प्रोटेक्टेड रहे, उसका डाटा कहीं मत जाए। And here we comes to an end. Thank you for watching the video. Keep building, keep learning, and share your feedback towards this video. Thank you.